وزیر اعظم عمران خان کا دورہ امریکہ، معاون خصوصی زلفی بخاری کی امریکہ میں مقیم کشمیری وفد، پی ٹی آئی رہنماؤں اور غلام نبی فائز سے ملاقات۔ 26 فروری کی رات جس طرح دشمن نے رات کی تاریکی میں ایک بزدلانہ حملہ کیا اور جس طرح وہ اپنے ٹارگٹ مس کر کے ایک افراتفری کے عالم میں بھاگا اور اس کی فارمیشنز تتر بتر ہوئیں، اور جس طرح اگلے ہی دن 27 فروری کو وہ اپنے ملک کے دفاع میں بری طرح ناکام رہا، تو جیسے ہی ان کی ایک فارمیشن نے LOC کو ہماری طرف کراس کیا تو آپ یقین کریں کہ اس جہاز کے LOC کراس کرنے میں اور میرا میزائل جہاز سے نکلنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں تھی۔ پاک فضائیہ کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت کے لیے مجاہدین افلاق کے نام سے اسٹیج شو، بھارتی طیارے گرانے والے ونگ کمانڈر نعمان علی اور اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی کا پرتپاک استقبال۔ قوم کے غیور بیٹوں کا کہنا ہے دشمن نے پاکستان پر دوبارہ میلی نظر ڈالی تو ایسا ہی جواب ملے گا۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور بولے، پاک فضائیہ نے ہر جنگ میں دشمن پر برتری قائم رکھی، آئندہ بھی رکھیں گے۔ بے نامی ٹرانزیکشنز کا لا جو کہ 1917 کا لا ہے، پھر اس میں رولز نہیں بنائے گئے، ہم نے ان رولز کو بنایا، ان کو ایڈ کیا۔ 30 40 سال دیوانی مقدمات میں لگتے ہیں، اور اب انشاءاللہ 6 مہینے سے سال 1.5 سال میں پہلا جو فرسٹ سٹیج ہے ٹرائل کا مقدمہ وہ ریزالو ہوگا۔ کرپشن میں ملوث افراد کو جیل میں کوئی سہولت نہیں ملے گی۔ 50 کروڑ سے زائد کی کرپشن کے کیس میں ملزم کو C کلاس ہی ملے گی۔ فروغ نسیم کی فردوس عاشق اعوان کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا پہلی بار فوری انصاف کے لیے قوانین لائے جا رہے ہیں، دیوانی مقدمات کی مدت کم کر کے 1.5 سال تک لائی جائے گی۔ بے نامی ٹرانزیکشنز میں وسل بلور کے قوانین متعارف کرائیں گے۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے سندھ میں گورنر راج خارج از مکان قرار دے دیا۔ 92 نیوز کے پروگرام ہاٹ ٹاک میں کہا کہ کراچی کو صوبہ بنایا جا رہا ہے، نہ وفاق کے کنٹرول میں لیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں آرٹیکل 149 کے متعلق وزیر قانون کے بیان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ شہباز شریف مارکیٹ میں آ گیا ہے، لیکن شہباز شریف پھر وہاں 1-2 انچ بہتر پوزیشن میں ہو گیا ہے بھتیجی اور بھائی کے درمیان۔ تو موسم کے ساتھ ساتھ سیاست بدلتی ہے، سیاست بدل رہی ہے۔ مرکز میں اکتوبر میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے۔ نہیں جا رہا بزدار کہیں، اور تو پھر نہیں جا رہا جو عمران نے کہا میں نے کہہ دیا۔ تبدیلی کا موسم آ رہا ہے، شیخ رشید کی اکتوبر میں مرکز اور پنجاب میں تھوڑی بہت تبدیلی کی پیش گوئی، بولے موسم کے ساتھ سیاست بدلتی ہے۔ شہباز شریف دوبارہ مارکیٹ میں آ چکے، کشمیر پر تمام جماعتیں متحد ہوں گی، قومی حکومت نہیں بن رہی، عثمان بزدار نہیں جا رہے، عمران خان NRO نہیں دیں گے، لیکن کچھ لوگ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے سرکاری اسکول کے اساتذہ اور طلبہ کی مستقل مانیٹرنگ کا 10 نکاتی ضابطہ اخلاق تیار کر لیا گیا ہے۔ سرکاری اسکولوں کے کلاس رومز میں CCTV کیمرے نصب کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ کلاس انچارج کو طلبہ کا پروفائل بنا کر اسے اپ گریڈ کرنے کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے لاہور سے ہمارے نمائندے قاضی ندیم اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی ندیم اقبال، 10 نکاتی ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے، کیا مندرجات ہیں اس کے؟ دیکھیں، حکومت پنجاب نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے کیے ہیں۔ نجی تعلیمی اسکول میں جو بچے کی ہلاکت ہوئی ہے، اس کے بعد تمام معاملات کو وزیر اعظم نے خود مانیٹر کیا اور حکومت پنجاب کو ہدایت جاری کی کہ ایسا سسٹم اپنایا جائے جس سے نہ صرف اساتذہ کا معاشرے میں حقیقی طور پر مقام بحال ہو، بلکہ جو بچے ہیں ان کا بھی مستقبل بہتر ہو سکے۔ اور یہ جو بچوں اور اساتذہ کے حوالے سے آئے دن اخبارات میں کہانیاں چھپتی ہیں، اس کا بھی تدارک ہو۔ اس حوالے سے حکومت پنجاب نے جو پالیسی بنائی ہے، اس کے تحت تمام پرائمری اسکول، تمام مڈل اسکول اور تمام ہائی اسکولوں کے کلاس رومز میں CC کیمرے لگائے جائیں گے۔ کلاس روم کی حد تک ایک واچ کلب بنایا جائے گا جس میں وہ بچے جو کہ اچھی طرح سے تیار ہو کے آتے ہیں ان کو اس کا سربراہ بنایا جائے گا۔ کلاس روم کے جو CC کیمرے ہیں ان کی جو ریکارڈنگ ہے وہ کم از کم 1 ماہ تک اس کا بیک اپ موجود رہے گا۔ جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں تمام اساتذہ جو ہیں
वो अपनी क्लासों में 15 रोज के बाद एक टेस्ट लिया करेंगे, जबकि स्कूल में सेमाई बुनियादों पर एक टेस्ट लिया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट वालिदैन को भेजी जाएगी ताकि वालिदैन को भी अंदाजा हो सके तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं। हुकूमत पंजाब की नई पॉलिसी की रोशनी में बच्चों के तलीमी साल को बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए और तलीमी इदारों का माहौल बेहतर बनाने के लिए जो इकदाम किए गए उनकी रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भिजवाया करेंगे, जो चीफ सेक्रेटरी की मुसादत से ऐवान वज़ीर जाया करेगी। सही, काजी नदीम इकबाल इस मुतल्लिक़ आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। राजनपुर जैसे पसमानदा ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले रिक्शा ड्राइवर की बेटी ने पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद मंजूर से। शहजाद मंजूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हिम्मत और लगन हो तो गुर्बत जो है तालीम के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजनपुर के एक ऐसे रिक्शा ड्राइवर के घर पर जिनकी बेटी ने पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर में न सिर्फ पहली पोजीशन ली बल्कि उन्होंने जो है राजनपुर का पसमानदा इलाके का नाम भी पंजाब भर में रोशन किया। उनसे पूछते हैं कि इन हवाले से उनके क्या जज्बात हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट अपने वालिदैन और असातिज़ा कराम को देना चाहूँगी और मैं अपनी ये कामयाबी उन कश्मीरी तलबा के नाम कर देना चाहती हूँ जो कि कर्फ्यू की वजह से अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकते। इस वक्त हमारे साथ जो है अंसर सजाद के वालिद साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके इस हवाले से क्या जज्बात हैं। सर मैं बहुत ज़्यादा खुशी थी, ये मेरी बेटी टॉप की थे और मैं पंजाब बोर्ड के गुजारिश करना कि मैं बच्ची को आगू पढ़ाना चाहना मेरे अल्तावन किताब। बिल्कुल, इनका कहना है कि इनके पास वसाइल नहीं है और पंजाब हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि मैं अपनी बच्ची को आला तालीम दिलाना चाहता हूँ, मेरी माली मामनत की जाए। आगे बढ़े, अलीपुर चट्टा के निजी कॉलेज में एक रोज़ा फाइन आर्ट्स फेस्टिवल का इनाकाद किया गया है। फाइन आर्ट्स का फेस्टिवल देखते हैं अलीपुर चट्टा से सरफराज अहमद हंजरा की इस रिपोर्ट में। अलीपुर चट्टा के निजी कॉलेज में एक रोजा फाइन आर्ट्स और पेंटिंग फेस्टिवल पहली दफा मुनक्किद हुआ, जिसमें तालिबात ने मुख्तलिफ तस्वीर और मलबूसात की नुमाइश करके अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार किया। मेरा ख्याल है कि इस प्लेटफार्म से अलीपुर चट्टा के स्टूडेंट्स को और आवाम को फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने टैलेंट को इस प्लेटफार्म के ऊपर डिस्प्ले करना चाहिए। फेस्टिवल में तालिबात ने मुख्तलिफ सोचों को तस्वीर के रंग दिए। ज़हनी आज़ादी और जहालत के मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर से तालिबात ने शुरका को अपना पैगाम पहुँचाया। ये हमारा फर्स्ट सेशन था, कुछ वीकनेस रह गई है लेकिन नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा होगा। हमारा ये फर्स्ट ईयर था तो ये बहुत अच्छा काम किया है और हमें बहुत अच्छा लगा है। इससे सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही हैं हमारे मुल्क में उसके ऊपर बच्चों ने काम किया है और अपने अपने ख्यालात को रिप्रेजेंट किया है। आर्ट एंड साइंस में हमने एग्जीबिशन का इनेकाद किया है ताकि आर्ट को प्रमोट करने के लिए और हमारे काम को देख के अलीपुर चट्टा में और लोग भी इस तरफ मतवज्जो हों, इससे इस्तिफादा हासिल करें। तालिबात ने आर्ट्स फेस्टिवल को सलाहियतें निखारने का बेहतरीन जरिया करार दिया, जबकि फेस्टिवल में मुख्तलिफ कॉलेजेस की तालिबात ने भरपूर हिस्सा लिया। तस्वीर जज्बात की अक्कासी करती हैं, उन्हें दूसरों तक पैगाम पहुँचाने का बेहतरीन जरिया भी तस्वुर किया जाता है। कैमरा टीम के साथ सरफराज अहमद, 92 न्यूज़, अलीपुर चट्टा। पंजाब असम्बली के 17 सितंबर को होने वाले इजलास में 4 बिल्स और 8 करारदादें पेश करने का फैसला किया गया है, जिसमें शीशा नोशी, क्रिस्टलाइज और प्लास्टिक बैग की तैयारी और फरोख्त पर पाबंदी भी एजेंडे में शामिल है। आपको बताएं कि 4 बिल्स और 5 करारदादें ख़वातीन ने तैयार की हैं। मज़ीद जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे गौहर अली से। गौहर, बताइएगा इन 4 बिल्स और 8 करारदादों से मुताल्लिक़। कि पंजाब असम्बली के 16 सितंबर से शुरू होने वाले इजलास में अहम कानून साजी की जाएगी, जिसकी 17 सितंबर को प्राइवेट मेंबर डे के मौके पर 4 अरकान असम्बली के मुख्तलिफ बिल जो है वो एजेंडे पर रख लिए गए हैं। अरकान असम्बली ये शिकायत करते रहे हैं कि प्राइवेट मेंबर डे के मौके पर उनका बिजनेस नहीं आता और प्राइवेट मेंबर डे को हुकूमत अहमियत नहीं देती, लेकिन इस बार जो 17 सितंबर रोज मंगल को प्राइवेट मेंबर डे आएगा उस पर 4 मुख्तलिफ बिल जो है वो एजेंडे पर रख लिए गए हैं। दिलचस्प बात यही, चारों बिल जो है वो खवातीन अरकान असम्बली के हैं। इन 4 बिल में एक भी बिल जो है किसी मर्द रुकन का नहीं है। मैं ये बताता चलूँ, ये दिन में तो 2 बिल बहुत ही अहमियत के हामिल है। एक बिल जो है वो का है जिसमें शीशा स्मोकिंग पर पाबंदी आयद करने का जो मुतालबा किया गया है। उसके अलावा पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर, उनके बनाने पर
इनको दरामद करने पर भी पाबंदी आयद करने का एक बिल एजेंडे पर रखा गया है। ये बिल शेड्यूल आफ्ताब का है। इसके अलावा सादिया सुहेल राणा का एक बिल है, दी पंजाब प्रोविंशियल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल 2019। ये तीन बिल बड़ी अहमियत के हामिल हैं, जबकि चौथा बिल जो है वो मुस्तरक जमशेद चीमा का है, दी पंजाब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2019। ये 4 बिल हैं। अगर ये चारों बिल जो हैं वो कोरम पूरा होता है तो फिर ये पेश हो जाएंगे। दिलचस्प बात ये है कि हुकूमत जो है वो पहले पार्लिमानी साल में 17 बिल जो है वो मंजूर करवा चुकी है। अरकान असम्बली ये शिकवा करते रहे हैं कि इन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता, इनका बिजनेस ज़ाया हो जाता है, लेकिन इस बार जो है वो प्राइवेट अरकान का बिजनेस है वो मंगल के दिन एजेंडे पर भरपूर अंदाज में रखा गया है। शुक्रिया गौहर अली, इस मुतालिक आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। आपको बताएं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने रविश न बदली, आईजी पंजाब के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। ट्रैफिक एहलकारों ने दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन सुनना और बीच चौराहे खुशकपियाँ लगाना मामूल बना लिया है। मजीद जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे अशरफ मजीद से। अशरफ मजीद, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? जी, आईजी पंजाब की तरफ से दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन सुनने पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन इससे सिटी ट्रैफिक पुलिस ने इनके अहकाम जो है रद्दी की टोकरी के नजर कर दिए हैं। वो उस वक्त पता चला जब एसपी ट्रैफिक जो सिटी सदर डिवीजन के हैं वो जब वाटर रोड के इलाके में दुबई चौक पहुंचे हैं तो वहाँ पे मौजूद जो अमला था, 2 ट्रैफिक वार्डन साजिद और रजा, वो रिक्शे में बैठ के दौरान ड्यूटी रिक्शे में बैठ के मोबाइल फोन सुन रहे थे, जिस पर उन्होंने दोनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने मरासला जारी किया है जिसमें उन्होंने खास तौर पे कहा है कि आइंदा से जब भी ड्यूटी पे जाएंगे ट्रैफिक एहलकार वो तमाम सेक्टर इंचार्ज को वो वहाँ पे मोबाइल जमा करवाएंगे। सेक्टर में मोबाइल जमा करवाने के बाद आइंदा से वो ड्यूटी पर जा सकेंगे। इसमें सिर्फ सेक्टर इंचार्ज को जो है वो छूट दी गई है, बाकी तमाम एहलकार जो कांस्टेबल से लेकर ट्रैफिक वार्डन तक होंगे वो तमाम मोबाइल जो है सेक्टर पे जमा करवाएंगे, उसके बाद ड्यूटी पे जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अशरफ मजीद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।